कि definitely after 1 hour of this session we'll start this. We are going to start right now. It will end at 4 o'clock. You will definitely going to enjoy it because जो टॉपिक है ना माइंड कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो कि आज के जनरेशन में सब बच्चों का बिगड़ा हुआ है. To be very honest, my dear, don't take it other way because you know we हमारा जो लाइफस्टाइल अभी हो गया ना, that is hell and heaven difference. When we were students, when you are students, हम लोग 8 बजे, still I remember those days, sharp 8 o'clock, my mother used to give me food कि भाई खाना खा लो, 8:30 में बेड में जाके सो जाओ. When I was in my school in 90s, but now मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, but I'm telling you. But now you see the difference. 12 बजे, 1 बजे तक, 2 बजे तक मैं जिसका भी देखता हूँ, मैं तुम लोगों का हमेशा व्हाट्सएप चेक करता हूँ एवरी टाइम. मैं इंडिविजुअल हम लोग जो ग्रुप में है, आई यूज्ड टू चेक द व्हाट्सएप. मैं देखता हूँ लास्ट सीन 2:02, 3:25, एक का तो हद हो गया. मॉर्निंग 5:30 बजे सोया नहीं बिल्कुल. तो दिस इज द थिंग व्हिच इज चेंजिंग अस. दैट्स व्हाई हमारा बहुत सारा जो बॉडी है ना, जो मशीन है ना, डिफेक्टिव हो रहा है. You will surprised to know, yes, today only the news came in the paper. अगर कोई ओल्ड टाउन के फॉरेस्ट पार्क के तरफ अगर कोई है तो ही मस्ट बी नोइंग. yesterday फॉरेस्ट पार्क में एक बैडमिंटन कोर्ट है. वो बैडमिंटन कोर्ट में कल एक 48 ईयर का आदमी, he was just mere 48 and he was a government employee. He was playing badminton and he used to play excellent badminton. वो बैडमिंटन खेला, 2 सेट खेला, जीता. 3rd सेट के लिए बैडमिंटन पकड़ा है, इमीडिएट हार्ट अटैक आया, वही मर गया ऑन द स्पॉट बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल वी आर मेंटेनिंग. सो इट्स अ वेरी गुड सेशन. लेट मी टेक द प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस मिस्टर संग्रामजीत दास, हु इज द monk from ISKCON and presently he is in charge of ISKCON Patia. He was a BTech graduate with more than 10 years of experience in IT industries, and you'll surprised to know he has worked in 3 IT companies, and all the 3 IT companies were the top level companies. He has worked in Cognizant, he has worked in CGI Corporation, and his last assignment was Wells Fargo, which is one of the very big company. But he was more interested toward the spiritualism, so he left the lucrative job. And his package was all in 6-digit number, I don't want to say. And he left that job and he came here. And right now he is preacher and counselor for youth and congregation from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavat. He is also the guest faculty at KIT International School and ODM group of school to deliver the moral values session. With him, we have one more gentleman, Mr. Sangram Naik, who is also associated with ISKCON Patia. Sir, we heartily welcome you, sir, and please have a big round of applause. So, I guess this 1 hour of session is definitely going to be an eye-opening session for all of our students. And please maintain discipline and listen. And whatever doubt query you do have, you can ask him. He's a very nice gentleman and definitely make it an interactive session. Thank you all and wishing all the best. Now I request sir to please proceed. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much all the students from BIITM, and as well as I'm very much thankful to Principal sir as well as Chandrasekhar sir. So it's my pleasure to be here. So today the session we will have like mind control and lifestyle management. So how many of you think that you sometimes feel you are in anxiety, you have maybe that overthinking, sometimes you are feeling that very much stressed, sometimes you are feeling that I am hopeless, sometimes you are thinking that I am very much frustrated, sometimes I am depressed. So how many of you think like this? So almost I am finding that around 80% students are feeling like this. And even if जो बच्चे हाथ नहीं खड़े किए हैं
ऐसा मत सोचिए उनको भी नहीं आता है, उनको भी आता है लेकिन हाथ खड़े नहीं किए। ठीक है, तो इसके वजह से देखिए आज के टाइम ऐसा है, तो मोस्टली वी फील लाइक दिस। ठीक है, तो इसके लिए ये जो सेशन है बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। तो इससे पहले हम लोग जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, तो आप लोग इसका उत्तर देंगे। तो मेरा सवाल है, आप लोग एमबीए कर रहे हैं राइट, तो इसका एमबीए का फुल फॉर्म क्या है? नहीं 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 नहीं, इसका फुल फॉर्म है मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है। और देखिए ये जो माइंड सेट है ना, हमेशा रखना चाहिए अंदर में, ये माइंड सेट रहना चाहिए, नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अंदर में ये माइंड सेट रहना चाहिए, लेकिन बाहर में क्या माइंड सेट रहना चाहिए, मुझे बहुत कुछ सीखना भी है। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग प्रोसीड करते करते मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि आप लोग जो एमबीए करने के लिए जो प्लानिंग किए, किसके लिए किए? सॉरी, अपने के लिए, मतलब एमबीए करने के बाद क्या सोचे कि एमबीए करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? पैसा। ओके, मनी इज स्वीटर देन हनी। हाँ सॉरी, मनी इज हनी। ठीक है ठीक है, पैसा मिलेगा, और कुछ? मनी इज एवरीथिंग। ठीक है, और कुछ? सॉरी सॉरी, हाँ, सोसाइटी का इमेज क्रिएट होगा, और कुछ? सॉरी, सब कुछ मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल सकता है जो पैसे से खरीदा जा सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, और कुछ? मेटेरियलिस्टिक चीज। ओके, और कुछ? पेरेंट्स बन जाएंगे उसके बाद, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। ओके ठीक है, और कुछ? यस, और कुछ? हाँ? आपका यहाँ पे पास आउट हो गए, जॉब हो गया, पैसा मिल गया, सिटी में रह गए, उसके बाद नेक्स्ट पावर। ओके, नेक्स्ट शादी करने के बाद पावर कितना मिलेगा पता चलेगा, पता चलेगा। ठीक है, और कुछ? यस, भगवान के साथ कनेक्शन बैठाएंगे। सॉरी सॉरी, भगवान के शरण में अच्छा पैसा कमाने के बाद, पहले नहीं। ओके ठीक है, और कुछ? और कुछ? अच्छा ये है कि आप देखिए, हम लोग कहते हैं कि पैसा आ जाएगा, जॉब भी आ जाएगा। आई एम डेफिनेटली टेलिंग दैट you will definitely get after your completion within 5 years. You will be in a good corporation, you will have good salary, everything is fine. But मेरा सवाल है, आप जितने लोगों को देखे हैं, आपके सीनियर्स को देखे होंगे, आपके ब्रदर्स होंगे, सिस्टर्स होंगे, जो पास आउट हो गए, जॉब कर रहे हैं, क्या लाइफ मजा कर रहे हैं या काट रहे हैं? मजा कर रहे हैं या काट रहे हैं? तो आपको क्या लग रहा है, आपके साथ क्या होगा? आपके साथ भी मोए मोए होने वाला है, आपके साथ भी यही होने वाला है कि आप भी पैसा कमाएंगे, जॉब करेंगे, एवरीथिंग इज फाइन। बट उसके बाद हम लोग जो सोच रहे हैं, ये जॉब करने के बाद, पैसा आने के बाद, एवरीथिंग, उसके बाद एक्चुअली क्या हम लोग ढूंढ रहे हैं? पीस। ओके, और कुछ? शांति। शांति, और कुछ? कोई शांति नामक का लड़की नहीं है ना, क्योंकि वो सोचेगी कि सब मेरे ही पीछे पागल है क्या। ठीक है, और कुछ? और कुछ? यस, खुशी। अच्छा, खुशी कोई नहीं है ना इधर? ठीक है, और कुछ? खुशी चाहिए, और कुछ? और कुछ? क्या क्या? फ्री टाइम, मी टाइम, जॉब करने के बाद। अच्छा, बढ़िया, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। यस यस, और कुछ? और कुछ? तो देखिए, व्हाटएवर वी आर डूइंग, हम लोग एमबीए कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एवरीथिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग, एट द एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी विल बी लीव ए पीसफुल लाइफ। बस मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, पीसफुल लाइफ, खुशी में रहना चाहिए। लेकिन सच में मिलता है क्या? आप जितने लोगों को देखे हैं, क्या उनको मिला है? बहुत, वो जॉब करने के बाद इतना खुश है। आप देखेंगे आपके जो टीचर आ रहे हैं, टीचर आने के बाद इतना खुश है टीचर, इतना खुश है। आप पूछेंगे क्यों खुश है? ना मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं शादी भी किया हूँ, मैं खुश नहीं होगा तो और कौन खुश हो सकता है? ऐसे कभी देखे हैं कि आप ज्यादा एक्साइटेड हो कि टीचर जब आते हैं बहुत एक्साइटेड है? आप बोल नहीं पाए क्यों, टीचर आगे हैं, बोल नहीं पाए। मैं आपका समझ रहा हूँ, जो मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि मोस्टली वी सी दैट आफ्टर गेटिंग द जॉब, आफ्टर अर्निंग द मनी,
after in the big city we are thinking that we will be happy, but the thing is that people are not happy, राइट ना। सो आज के जो स्टैटिस्टिक्स है, इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, आज के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 5.3 बिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी एंड डिप्रेशन काइंड ऑफ इशू। एंड द स्टूडेंट 7 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट ऐसा है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन इसके बीच में गुजर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर क्लास में लगभग 100 स्टूडेंट है तो लगभग 15-20 स्टूडेंट ऐसे हैं, समझ रहे हैं ना। तो कहाँ पे गलती कहाँ है? क्योंकि आपके एमबीए स्टूडेंट है, मोस्टली आप लोग एनालिसिस करते होंगे कि आज का ये है वो है, और आप लोग देखिए मोस्टली। और एक चीज मैं बताता हूँ, व्यक्ति ज्यादा सक्सेस होने के बाद उनको प्रॉब्लम्स आता है या सक्सेस होने से पहले? ये जो जितना भी एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी हम लोग देख रहे हैं, गांव के लोगों को ज्यादा है कि जो लोग सिटी में रह रहे हैं, बढ़िया जॉब है उनको सिटी में क्यों? फिर क्यों? एक ओके ठीक है, एक है लाइफस्टाइल, ठीक है, और कुछ? सॉरी, कमाने सिटी में रहता है, वो टेंशन में रहता है, इधर मजा करते हैं, ठीक है, और कुछ? कंपटीशन, ठीक है, और कुछ? यस, कंपटीशन। यहाँ के बच्चे एकदम साइलेंट है, बोले क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आपको क्या लेना है, ठीक है, थोड़ा पार्टिसिपेट करते रहो। सॉरी, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ, बोले हम थोड़ा आराम से सोएंगे भाई, हमको मजा आएगा इससे ठीक है, ये क्या मतलब, ठीक है। तो कंपटीशन नेक्स्ट, ये लोग अभी फील करे हम अभी शांति है, हमारा शांति क्यों छीन रहे हो तो ठीक है, तो नेक्स्ट और क्या? डिससेटिस्फेक्शन, ठीक है, और कुछ? और पाने की इच्छा, ठीक है, और कुछ? सॉरी, एनवायरमेंट, ओके, और कुछ? और कोई पॉइंट? ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए एक बढ़िया इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ठीक है। इस्कॉन मुंबई के जो हेड है, ठीक है, इस्कॉन मुंबई के जो हेड है उनका नाम है गौरांग दास। 93 में आईआईटी मुंबई से पास आउट हुए, ठीक है। जब 93 के मुंबई के पास आउट हुए, उससे पहले 1 साल पहले के ऐसा इंसिडेंट हुआ। क्या इंसिडेंट हुआ था कि उनके देश में एक बच्चा सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया था, बट समहाउ फॉर्चुनेटली जो फैन में वो लटक के सुसाइड करने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो फैन गिर गया। बच जाने के बाद उनको जाके ये पूछे कि आप जो सुसाइड करने के लिए प्लान कर रहे थे किसके वजह से, क्या ऐसे रीजन था, व्हाई यू थॉट दैट यू विल कमिट सुसाइड, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, हर वक्त हर एग्जाम में मैं टॉप करता था, आई वॉज द टॉपर इन ऑल एग्जाम, लेकिन इस बार मैं सेकेंड पोजीशन में आ गया। तो उसके बाद बोले कि सेकेंड पोजीशन में आ गए, कौन सा बड़ा प्रॉब्लम हो गया? उसके बाद उनका जवाब सुनिए, वो बोल रहे हैं, देखिए फ्रेंड सर्कल के लिए, सोसाइटी के लिए शायद हो सकता है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल क्रिएट नहीं करता है ना। प्रॉब्लम्स कभी सोसाइटी या फ्रेंड सर्कल क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है माइंड ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। व्यक्ति जो गांव में है, मेंटली बहुत सेटिस्फाइड है, उनको बढ़िया खाना मिलता है, सो जाता है बढ़िया, लेकिन आपके पास सैलरी होने के बावजूद भी, आप इतना बड़े कॉर्पोरेशन में होने के बावजूद भी, माइंड आपको हमेशा गुगली फेंक के आपको बोल्ड आउट कर देता है। और आप देखिए, जितना भी सक्सेस आप होते जाएंगे, आपका माइंड गुगली उतना ही तेज फेंकेगा। रिहाना अभी आई थी नाचने के लिए, ठीक है, रिहाना का आप देखिए पूरा इंडिया उनको मिस कर रहा है। रिहाना रात को सोते वक्त आप रिहाना को सोचते हुए सोते होंगे, और रिहाना का एक पोस्ट आया, आई एम ऑल्सो मिसिंग माई एक्स बॉयफ्रेंड। आप उनको सोच के सो रहे हैं, सो नहीं पा रहे, और उनका बॉयफ्रेंड को सोच के सो नहीं पा रहे, उनका बॉयफ्रेंड और किसी को सोच के सो नहीं पा रहे। तो संसार ऐसे ही चल रहा है। जो हमारे पास है उसका वैल्यू हम समझ नहीं पा रहे,
और जो चीज पाने के लिए चाहते हैं शायद हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है। और ये माइंड का खेल है, माइंड ऐसे ही गेम करता रहता है हमारे साथ। मैं एक रियल इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। 2013 नवंबर 25 आई ज्वाइंड सीजीए। आई ज्वाइंड सीजीए इन बेंगलोर इन 2013 नवंबर 25। ठीक है, तो मैं जब ज्वाइन किया तो उस टाइम में मेरा एक्सपीरियंस था अराउंड 3 इयर्स। तो मेरे साथ और एक कॉलीग ज्वाइन किए, वो उड़ीसा से थे। ठीक है, उड़ीसा से जॉब किए थे लगभग 5 साल। उसके बाद हम लोग ज्वाइन किए। और सीजीए बहुत अच्छा कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एम्प्लॉय फ्रेंडली है, बहुत अच्छा है। आप लोग अगर आपको चांस मिलेगा तो सीजीए में ज्वाइन करना। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइन किए, काफी खुश थे। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइन किए, मैं था डॉटनेट में। ठीक है, वो जो व्यक्ति थे OSIPI करके टूल है, ये थोड़ा रेयर टेक्नोलॉजी में आता है। तो ये ज्वाइन किए सीजीआई। ठीक है, तो हम लोग खुश थे, उनका एक्सपीरियंस था अराउंड 5 इयर्स। ठीक है, तो उसके बाद सीजीआई ज्वाइन करने के बाद नवंबर 25 में मुझे लगभग 1-1.5 साल में मुझे प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन उनका जो रेयर टेक्नोलॉजी था, हम लोग सेल के क्लाइंट में प्रोजेक्ट में ज्वाइन किए थे। ठीक है, तो उनको प्रोजेक्ट ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं मिला, लेकिन काफी खुश थे, काफी खुश थे। उसके बाद उनको एक कॉल आया टीसीएस, कोलकाता टीसीएस से। ठीक है, कोलकाता टीसीएस से एक जॉब का ऑफर है। तो मुझे जाके बात की, संग्राम ऐसे कुछ ऑफर आया है कोलकाता टीसीएस से, क्या करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम में उनका पैकेज था अराउंड 6 लाख और उनको ये जो ऑफर मिला लगभग 10 लाख का। तो ये बोले कि संग्राम देखिए 10 लाख का पैकेज मिला है और मेरा तो ऐसे भी प्लान है भुवनेश्वर के पास में रहूंगा, कुछ सेटअप करूंगा ऐसे टाइप का। तो इस हिसाब से मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं सीजीआई में खुश हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद आए कहाँ पे? कोलकाता टीसीएस। कोलकाता टीसीएस आने के बाद वो जो प्रोजेक्ट में ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे, वही प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया भुवनेश्वर टेक महिंद्रा। ज्वाइन करने के बाद वही प्रोजेक्ट आ गया कहाँ पे? भुवनेश्वर टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा से फिर कॉल गया कि आप जो प्रोजेक्ट में टीसीएस से ज्वाइन करने वाले थे, वही प्रोजेक्ट अभी हमारे पास है, तो आप हमारा ऑफर स्वीकार करिए और इधर आइए। और कर भी क्या कर सकता है, शादीशुदा व्यक्ति है। तो आ गए कहा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आने के बाद वही प्रोजेक्ट शिफ्ट हो गया हैदराबाद टेक महिंद्रा। हैदराबाद टेक महिंद्रा, देखिए व्यक्ति का कैसे टाइप का चल रहा है परीक्षा। तो हैदराबाद टेक महिंद्रा गए, उस टाइम में थोड़ा बहुत बातचीत हो रहा था। उसके बाद मैं मूव कर गया कॉग्निजेंट में। उसके बाद हमारा बातचीत इतना नहीं हो पा रहा था, हैदराबाद चले गए। हैदराबाद में कुछ साल प्रोजेक्ट में जॉब करने के बाद व्यक्ति को मैं जब फेसबुक में देखा यूएस में एकदम सेटल है। और यूएस में जो व्यक्ति रहता है उनका देखिए फोटो कैसे मतलब पोस्ट करता है, हाफ पैंट पहना है, एकदम पॉश कार, एकदम बढ़िया रिवर, एकदम मतलब ग्रीन ग्रास। लड़की लोग कैसा लग रहा है? ऐसे अगर व्यक्ति मिल जाए शादी करने के लिए, लड्डू फूट रहा है बहुत सारे लड़की लोगों का कि ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऑन साइड में सेटल हो, ऐसे टाइप का लाइफ। तो डेफिनेटली कोई भी अगर देखेगा उनको लगेगा कि कितना बढ़िया लाइफ है इनका, कितना बढ़िया लाइफ है। तो उसके बाद बहुत दिन तक बात बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था। अभी कुछ दिन पहले मेरा उनका एक मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप में, एक मैसेज आया। तो मैसेज वो लिखे थे कि संग्राम मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, और दूसरा बात है मैं भगवत गीता समझना चाहता हूँ। मैं बोला भाई ये क्या बात हो गया? व्यक्ति यूएस में सेटल है, वो भगवत गीता पढ़ना चाहता है। मैक्सिमम तो मैं देखा हूँ भगवत गीता वही पढ़ते हैं जिसका ब्रेकअप हुआ है। वो आगे पूछते हैं प्रभु जी भगवान संसार क्यों बनाए? मैं बोला ठीक है, एक हफ्ते रुक जाओ, तेरा और कहाँ पे सेटल हो जाएगा, भगवान क्यों बनाए तुझे आंसर मिल जाएगा। तो फिर मैं जब बात किया तो बात में वो बोले कि देखिए संग्राम आपको छुपाने का बात क्या है, आपको छुपाने का बात क्या है, आपको मैं खुल के बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं यूएस में हूँ, बहुत बढ़िया लाइफ चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन बात ये है यूएस आने के बाद हुआ क्या, मेरा जो 10th क्लास में जो सुंदर सा लड़की थी हमारे क्लास में, और मेरा उनके प्रति क्रॉस था। और मैं यूएस आने के बाद जब सेट हो गया ना लाइफ में, तो मैं उनको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा और रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद हमारा चैटिंग चला, लेकिन चैटिंग में
वो लड़की इतना रेस्पॉन्स ठीक से नहीं दे रही थी। जब रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी तो मेरा रेस्पॉन्स खो रहा था, मेरा जीवन का रेस्पॉन्स खो रहा था। तो मैं इसीलिए डिप्रेस हूं क्योंकि वो मुझे ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं कर रही। और दूसरा चीज है, मेरे वाइफ के साथ झगड़ा चल रहा है। झगड़ा तो हो गया ही ना, झगड़ा तो हो गया ही ना, क्योंकि इधर वाइफ होते होते और किसी वाइफ को। और ये पॉइंट सुनने के बाद आप ये मत सोचिए आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट दैट पर्सन। मैं उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि द माइंड इज सो कनिंग माय डियर फ्रेंड्स, दिस माइंड इज सो कनिंग। आपका सक्सेस होने के बाद ये आपको ऐसे ही हमेशा गुगली फेंक के आपको बोल्ड आउट करेगा। जितना आगे 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 जाएंगे उतना ही माइंड ऐसे ही करके आपको हमेशा के लिए दुखी रहने के लिए मजबूर करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं, और कभी कभी बच्चे क्या सोचते हैं ना, इफ वी विल बी वेरी मच सक्सेसफुल, if you will be very much successful, all this money, name, fame, prestige, if you will get, then we will be happy. Mostly students think that if we will get name, fame, prestige, money, then obviously we will be very happy. आपको पता है माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन कितने लोगों को पता है माइकल जैक्सन? दोस्तों माइकल जैक्सन जो सेलिब्रिटी थे, उनका जो रेपो क्रिएशन हुआ था, शायद आज के जमाने में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है उनके हिसाब का रेपो क्रिएशन कर पाया था। माइकल जैक्सन एक तो है बढ़िया डांस करते हैं, उसके साथ बढ़िया गाना भी गाते हैं। उनका जो मून वॉक इतना क्रेज क्रिएट किया था, इतना क्रेज। तो उनका जहां पे भी मतलब प्रोग्राम होता था, वेदर इट इज इन न्यूयॉर्क सिटी, वेदर इट इज इन लंदन, वेदर इट इज इन एनी प्लेस, कहां पे भी उनका प्रोग्राम होता था तो प्रोग्राम से पहले एटलीस्ट 30 से 40 एम्बुलेंस आके खड़ा करते थे। क्यों? क्योंकि इधर तो नाच गाना होने वाला है, लेकिन एम्बुलेंस क्यों खड़ा करते थे? क्या? सॉरी, भीड़ होता है, उसके बाद मतलब इतना क्रेज था उनके लिए, उतना क्रेज। वो जब एंट्री करते थे तो इतना क्राउड और स्टम्पेड हो जाता था इनके बीच में, इतना क्राउड। और माइकल जैक्सन अगर डांस करते 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 उनका टी शर्ट ऐसे फेंक दिए, टी शर्ट फेंक दिए, करोड़ों रुपए का ऑक्शन होता था। ये है माइकल जैक्सन का रेपो। और देखिए, अगर कोई लड़की को चूम लिया हाथ में, लड़की पूरा बेहोश, भगवान चूम लिए भाई, भगवान, ऐसे टाइप का व्यक्ति था। 83 करोड़ 83 एकर्स का जमीन का उनका घर था, 83 एकर्स सब जमीन का उनका घर था। और देखिए इस लेवल का जो व्यक्ति का रेपो है, लड़का लोग सोचते होंगे प्रभु जी ऐसे थोड़ा ब्लेसिंग करिए, हम भी थोड़ा ऐसे रेपो क्रिएट हो जाए। तो इस लेवल का जिसका रेपो था, आप सोचिए उनको कभी मरने के लिए इच्छा होगा। और वही व्यक्ति प्लान भी ऐसे किया था, 200 साल जीना है, 200 साल प्लानिंग भी ऐसे ही किए थे। और कितना साल में उनका डेथ हो गया? कितना? 50, ओनली 50। और देखिए 50 इयर्स के डेथ होने के बाद यू विल बी कंप्लीटली एस्टोनाइज्ड व्हेन यू विल सी द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। If you will hear the postmortem report of Michael Jackson, you will completely astonished. व्यक्ति जिसका इस लेवल का रेपो, वो व्यक्ति का डेथ हुआ और डेथ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया कि व्यक्ति बहुत सालों से ओनली मेडिसिन ही खा रहा था, ओनली मेडिसिन खा रहा था। क्यों मेडिसिन खा रहा था? एक तो है डांस करने के लिए बॉडी फिटिंग बहुत जरूरी है, बॉडी फिटिंग। और दूसरा चीज है, माइकल जैक्सन हर इंटरव्यू में बोला था कि हमेशा मैं लोनली फील करता हूँ। हर इंटरव्यू में वो बोलता है मैं लोनली फील करता हूँ। जो व्यक्ति एंट्री करते करते लड़की पागल है, वो व्यक्ति बोल रहा है मैं लोनली फील कर रहा हूँ। देखिए ये मशीन, ये सिस्टम भगवान ने ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया। अगर ये जो सिस्टम, अंदर का सिस्टम को आप ठीक नहीं किए ना, ये अंदर का सिस्टम को आपको ठीक नहीं किए ना, whatever the external things you will get, still you will feel something is lacking. Something is lacking. So this is the level of the mind. तो आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? ये माइंड को कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो आज हम लोग देखते हैं
हमारा स्थिति कैसा है माइंड को लेके, ठीक है, हमारा स्थिति कैसा है माइंड को लेके, ठीक है, उसका पीपीटी चलाए। तो ठीक है, माइंड के बारे में हम देखते हैं, माइंड का जो हमारा अभी स्थिति कैसा है और इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। तो माइंड तो इसीलिए भगवान ने भगवद गीता के 6.6 में कहते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक है, वो श्लोक हमको दिखा सकते हैं क्या? 6.6 भगवद गीता का श्लोक, ठीक है, ये श्लोक मैं आपको बोलता हूं, उसके बाद आप दोहरा सकते हैं, पक्का, ठीक है, ये भगवद गीता का 6.6 नंबर श्लोक है, ठीक है, आप लोग दोहराएंगे सब लोग, ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य, आप क्या खाएं आज? चावल, ठीक है, और कुछ? यहाँ पे कैफेटेरियन नहीं है, है ना? क्या खाए आज? पखाड़ा। क्या खाए आज? पखाड़ा माछा, माछा भी पावर भाव नहीं भाई। तो जो भी है, तो हम लोग देखना चाहते हैं VITM का पावर कितना है, ठीक है, जबरदस्त साउंड में बोलिए, ठीक है। बंधुरात्मनस्तस्य, यस, जेन आत्मनात्मनैव जिताम अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मनैव शत्रुवत्। किसी को समझ में आया क्या श्लोक है? कितने बच्चे हैं ऐसे भगवत गीता कभी कभी पढ़े हैं एटलीस्ट? अच्छा, पढ़े, बहुत बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका श्लोक का मीनिंग ये है, कृष्ण ने कह रहे हैं, द पर्सन हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, द पर्सन हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, द माइंड विल बी हिज बेस्ट फ्रेंड। व्यक्ति अगर उनका मन को कंट्रोल कर लिया तो मन उनका दोस्त जैसा बिहेव करेगा। बट इफ द पर्सन हैज नॉट कंट्रोल ओवर हिज माइंड, देन माइंड विल बी हिज वर्स्ट एनिमी। माइंड ही आपको बर्बाद करके छोड़ देगा। जितने लोग बर्बाद हुए हैं, आप मत सोचिए एनवायरमेंट कुछ नहीं किया है, उनका माइंड ही उनको बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी मैं पूछना चाहता हूं, आपका माइंड आपका दोस्त है या दुश्मन? दोस्त है या दुश्मन? दोस्त कितना बोलेंगे? दोस्त, ठीक है। कितना बोलेंगे कि दुश्मन? जो बोल रहे हैं दुश्मन, ये थोड़ा जेन्युइन व्यक्ति है, दुश्मन ही है, हमारा दुश्मन ही रहता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे माइंड हम लोग को कैसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। हमेशा माइंड क्या करता है ना, प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन माइंड क्रिएट करता है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारा कॉलेज में जाता हूँ सेशन देने के लिए, ठीक है। सेशन होने के बाद मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन क्या आता है पता है? सेशन हो गया, मैं फिर चला गया, बच्चों का वही एक क्वेश्चन आता है, प्रभु जी, कॉल आता है उसके बाद, प्रभु जी क्या हुआ ना, मैं पढ़ रहा हूँ MBA, मेरा गर्लफ्रेंड पढ़ रही उत्कल यूनिवर्सिटी में, हम लोग का शादी होगा? हम लोग का शादी हो पाएगा? मैं उनको तो भाई देखे, मेरा शादी नहीं हो पाया, तेरा शादी होगा कि नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? और मैं उसके बाद समझाता हूँ, देखिए आप MBA के फर्स्ट ईयर में हो भाई, शादी अभी आपका टाइम नहीं हुआ, आप बस जॉब कर लीजिए, उसके बाद कौन सा घर वाले मना करेंगे आपको? तो टाइम के बाद सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग टाइम नहीं आया, हम लोग बहुत टेंशन में है, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। देखिए बहुत बच्चे ऐसे होंगे बहुत एंजाइटी में, जॉब होगा कि नहीं, यही है ना, जॉब होगा कि नहीं, मार्केट डाउन है, ये है वो है, बहुत बच्चों को ऐसा टाइप का है ना। तो ये जो चीज है ना, डेफिनेटली जॉब होगा, आप अगर ठीक से प्रिपेयर कर लेंगे तो जॉब हो जाएगा, इसके लिए बहुत सोचना नहीं है। लेकिन माइंड का काम ऐसा है, मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद आई स्टैंड्स फॉर, आई पे जाइए, आई स्टैंड्स फॉर इमेजिनेशन। दोस्तों जीवन में इमेजिनेशन इतना मीठा है, इतना मीठा है इमेजिनेशन, शायद रियलिटी में भी ऐसे नहीं होता है। इमेजिनेशन इतना स्वीट है। आप लोग जब इमेजिन किए थे, VITM में ज्वाइन कर लिए, कॉलेज 15 दिन में होने वाला है, आप जब घर में थे क्या क्या इमेजिनेशन आया था? लड़का लोग क्या क्या इमेजिनेशन आया था? मैं जाऊंगा इंडक्शन प्रोग्राम में मैं जाके इधर बैठा हूं और उस साइड एक सुंदर सा लड़की,
क्या सुंदर है यार, लिपस्टिक, हेयर स्टाइल, एकदम सुंदर सा लड़की। उसके बाद क्या करेंगे आप, पता चल गया उस साइड में एक सुंदर सा लड़की है। उसके बाद आप डेफिनेटली जिज्ञासा करेंगे कि उनका नाम क्या है। उनका नाम पता चलेगा जस्मिन। क्या खुशबूदार नाम है यार, क्या खुशबूदार नाम, वाह। उसके बाद नेक्स्ट आपको पता चल गया उनका नाम भी जस्मिन है। उसके बाद सॉरी, उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं, ओके ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कौन सा, ठीक है आपका एमबीए का, ओके। उसके बाद क्या क्या, देखिए एक्सपीरियंस का लेवल देखिए, एक्सपीरियंस का लेवल देखिए। उसके बाद इंस्टा आईडी, उसके बाद फेसबुक, उसके बाद उसके बाद सॉरी, मतलब थोड़ा चैटिंग हुआ, चैटिंग के बाद कॉन्टेक्ट नंबर भी आ गया। उसके बाद डेफिनेटली देखिए देखिए कितना मतलब बहुत प्लानिंग से। उसके बाद डेटिंग, पहले हो गया चैटिंग, उसके बाद डेटिंग। और भुवनेश्वर में मोस्टली आप डेटिंग के लिए कहाँ जाएंगे, कैफे, मतलब कोई भी मान लीजिए मॉल जाना है, ठीक है, जब मॉल जाना है प्लानिंग हो गया। बच्चों का देखिए हैप्पीनेस का लेवल, हैप्पीनेस का लेवल, प्रभु जी जान बचा दिया हमारा, ऐसे टाइप का बात करिए ना, जान बचा दिए। तो आपका प्लानिंग हो गया कि संडे को जाएंगे। जो संडे आप जाएंगे उससे 3 दिन पहले आपको नींद ठीक से नहीं हो रहा है, 3 दिन पहले नींद ठीक से नहीं हो रहा है। संडे को प्लान हो गया, ठीक 12 बजे लड़का का कॉल आएगा कि आज हम लोग जा रहे हैं। और लड़की देखिए बहुत मतलब बहुत बहुत डिफेंसिव रहते हैं, क्या बोलेंगे, थोड़ा सा तबीयत खराब नहीं लग रहा था तो क्या कर, नहीं चलो यार अच्छा लगेगा, मूड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जा रहे हैं, तो जाने के बाद आप देखिए कोई भी मॉल जाइए, जाने के बाद एंट्री करते करते आप देखिए इतना खुशबूदार स्मेल, मॉल के अंदर इतना खुशबूदार स्मेल, आपका मोस्टली आपका एकदम मन में लड्डू फूट रहा है। और उसके बाद देखेंगे बहुत सारा कपल्स में वो जा रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, आपको एकदम मतलब बहुत एकदम एक्साइटेड है। और ये देखिए इमेजिनेशन में चल रहा है, ठीक है, इमेजिनेशन। उसके बाद आप जा रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं माइंड में, हाथ इनका पकड़ लूं या नहीं पकड़ लूं। पहला डेटिंग है, हाथ अगर पकड़ लूंगा तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा, क्या करना है, ऐसे सोचते 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 आप जाके कहां पे पहुंच गए। और देखिए मोस्टली आप देखिए कहां पे भी आप जाइए, केएफसी हो जो भी हो, ये सब कौन से फ्लोर में रहता है, थर्ड फोर्थ, ये सब फ्लोर में रहता है। तो आप जाते जाते पहुंच गए कहां पे, एस्केलेटर के पास, ठीक है। और वहां पे लड़की बोलेगी कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है यार, तुम हाथ पकड़ लोगे क्या। तो लड़का तो सोच रहा है भगवान दिया तो दिया, एकदम छप्पर फाड़ दिया भाई, छप्पर फाड़ के दे दिया। तो उसके बाद आप गए कैफेटेरिया में बैठ रहे हैं, कैफेटेरिया में वो आगे है, आप ये है, और आप थोड़ा सा डर लग रहा है, शर्म भी आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है। और उस टाइम में देखेंगे ये जो कैफे के अंदर एकदम रोमांटिक स्मूथिंग सा सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग चलता है, क्योंकि तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। ये है इमेजिनेशन का लेवल। और उसके बाद आपका जो भी हो गया, खाना पीना सब कुछ हो गया। उसके बाद आने के टाइम में कभी जो लड़का है काफी मतलब अभी नर्वस फील कर रहा है। क्यों नर्वस क्यों फील कर रहा है, क्योंकि खाना पीना सब तो हो गया, लेकिन अभी प्रपोज का टाइम है ना, प्रपोज का टाइम है, नर्वस फील कर रहा है। धीरे धीरे आते आते लड़के पूछता रहता है क्यों ऐसा क्यों फील कर रहा है, नहीं थोड़ा सा ये लग रहा है। तो उसके बाद आते आते एकदम हॉस्टल के गेट सामने में पहुंच गए, गेट के सामने पहुंच गए, लड़की मतलब उससे ही जाने वाली है। तो लड़का एकदम करेज लेके सोचता है अभी बोल दो भाई, बोल दो, जो भी हो बोल दो। तो उसके बाद बोल देती है, जैस्मिन मुझे तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है। ये बोलने के बाद लड़के का क्या रिस्पॉन्स आती है, लड़के का क्या रिस्पॉन्स आती है भाई, इतिहास गवाह है। लड़की बोलेगी राहुल मैं तुम्हें अच्छा दोस्त ही मानता हूं, इतिहास गवाह है दोस्त। लड़की बोलेगी मैं तुम्हें दोस्त ही मानता हूं। देखिए ये जो पेशेंस का लेवल, लड़की लोगों का ये जो पेशेंस का लेवल ही लड़का लोगों को उनके पीछे घूमने के लिए मजबूर कर देता है। पेशेंस का लेवल, ठीक है।
तो ये हो इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में एवरीथिंग इज स्वीट। और आप देखेंगे कॉलेज में, जब कॉलेज में आएंगे, दो टाइप के लड़के बहुत खुश है। दो टाइप के लड़के बहुत खुश है। एक है आते आते ही उनका पहला वीक में उनका सेटिंग, उनका गर्लफ्रेंड है। तो इस टाइप के लड़के कैसे हैं? कहते हैं नजरों से नजरें मिली, नजरों से नजरें मिली, पहले मुलाकात में दोनों रहे खामोश लेकिन बात बन गई। ये इस टाइप के लेवल के उनके फर्स्ट हफ्ते में सेटिंग, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है। और कुछ है जिसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, जिसको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। कौन कौन है उनको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? और देखिए ये जो हाथ खड़े कर रहे हैं, ये 90% ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। उसके बाद तो देखिए, और तीसरा देखिए लड़के लोग, और देखिए तीसरा कैटेगरी आते हैं। एक होता है उनका गर्लफ्रेंड है, खुश है। दूसरा है उनको गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, वो खुश है। तीसरा आता है उनको गर्लफ्रेंड चाहिए और मिलता नहीं। और हर जगह में ट्राई, फेसबुक में ट्राई, इंस्टाग्राम में ट्राई, क्लास में भी ट्राई। और ये सब होने के बाद और उनके देखिए फ्रेंडशिप में बहुत गहराई है, उसके बाद ऐसे बैठेंगे, बात करेंगे, भाई दोस्त है तू दुखी मत था, ठीक है, जो भी हो गया, थोड़ा पेशेंस रख, नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट ईयर आएंगे उसमें पक्का गर्लफ्रेंड बना लेंगे। जब नेक्स्ट ईयर आएंगे तो पक्का बना लेंगे। तो ये है। और तीसरा कैटेगरी आता है, ये सबसे ऊपर भाई लेवल के कैटेगरी। कुछ बच्चे हैं उनका भाई बनना है। ये जो भाई बनने का प्लान ना, ये थोड़ा म्यूचुअल फंड जैसा है। रिस्क कम और रिटर्न रेगुलर बेसिस में आता रहे। देखिए लड़की का भी ब्रेकअप हो गया, तो ये इनके सर पे ये देके रो रहे हैं। आपको लग रहा है भाई ये तो कुछ डिफरेंट लेवल का जी रहा है, ऐसे टाइप का। आप कैसे ठीक है। तो लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, so everything is sweet in the imagination only. Whether you are in relationship, whether you are single, whether you are expecting to be in relationship, everything, all the thing that only in imagination everything is sweet, but in reality it is not like that. जो लोग सिंगल है वो सोचते होंगे जिसका गर्लफ्रेंड है बहुत खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए, आपका क्लास होने के बाद आप घर में चले गए, रात को आप 10 बजे सो सकते हो, 11 बजे सो सकते हो, 12 बजे सो सकते हो। जिसका गर्लफ्रेंड है उसको 1 बजे तक बात करना ही है 1 बजे तक। और संडे को मान लीजिए आपका गर्लफ्रेंड नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, मूवी देख सकते हो, कहाँ पे घूमने के लिए जा सकते हो, मैच देखने के लिए जा सकते हो, भगवत गीता के क्लास में जा सकते हो, सो सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जिसका गर्लफ्रेंड है उसका कॉल आएगा 12 बजे, आज हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं कि नहीं। तो लड़का बोलेगा कि थोड़ा वीक लग रहा था यार, तो लड़की बोलेगी तुम्हें तो हमेशा ही वीक लगता है, तुम्हें हमेशा ही टायर्ड लगता है, ठीक है तुम रेस्ट लो, मैं शुभम के साथ घूमने के लिए जाता हूं, मेरा जो दोस्त। और ये सुनने के बाद लड़का का 10 दिन तक नींद हराम हो जाता है, 10 दिन तक नींद हराम हो जाता है। तो ये है लेवल। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दैट कि आपका रिलेशनशिप, यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर इन एलोन, यू आर इन ब्रदर जोन, व्हाटएवर मे बी, everyone expecting that I will have some happiness, everyone is looking for happiness। लेकिन बात यह है the imagination is very sweeter, इमेजिनेशन इज वेरी स्वीटर। और कुछ तो ये है जिसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, वो सोचते होंगे शादी करने के बाद हम बहुत मजा करेंगे, शादी करने के बाद बहुत मजा करेंगे। ऐसे करते करते उनका शादी भी बहुत टाइम में नहीं हो पाता है। किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन देखिए, ये भी होता है। So that's why I'm telling that you just accept the thing how it is coming to you. If you will be, your acceptance level is very nice, then every moment you will be in very much happiness. आप बस इमेजिन कर रहे हैं ऐसे होगा, इमेजिनेशन के बाद भी ये सब नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखिए आपका प्रेजेंटेशन है, जो भी है, आपको 4 दिन या 5 दिन टाइम मिला है। देखिए माइंड वही बोलता रहता है 4 दिन तो है,
4 दिन के बाद है, 4 दिन के बाद है, 4 दिन के बाद है, ऐसे करते करते पूरा आ जाएगा टाइम। और उसके बाद आप टीचर को जाके बोलेंगे मेरा तबीयत थोड़ा खराब था, मेरा तबीयत खराब था। होता है कि नहीं? नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। और देखिए डिस्ट्रैक्शन का लेवल आज के टाइम में देखिए, आपके क्लास में तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट होते होंगे, ये बहुत नेचुरल है। आप देखिए व्हेन यू आर स्टडीइंग ना, दैट टाइम आल्सो, मतलब आप 10 मिनट पढ़ रहे हैं, फिर थोड़ा रील्स देख रहे हैं, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, ये तक भी ठीक है। डिस्ट्रैक्शन का लेवल देखिए किस लेवल तक जाके पहुंच जाए। मान लीजिए आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ कोई रेस्टोरेंट में गए हैं, आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं, आप बैठे हैं, गर्लफ्रेंड इधर, उसी टाइम में और एक सुंदर सी लड़की एंट्री किया। लड़का का भी दिमाग उतावला हो रहा है उनको देखने के लिए, आगे बैठी है गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड अगर थोड़ा सा चालाक है तो इनको थोड़ा सा ऐसे गोली फेंकेगी। लड़की ड्रेस सेंस देखो कितना अच्छा है, ये थोड़ा आपको बस ये कर रहे हैं, देख रहे करने क्या वाला है। तो जब ये इसका तो एकदम मतलब देखने के लिए पूरा पड़क, और उस टाइम में लड़की ये जो पड़क कर दी है, जिंदगी भर याद रहेगा कि तुम रेस्टोरेंट के अंदर ऐसे ही किए थे। और शादी का 50 साल भी हो जाए, उसके बाद अगर आपको उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ, खाना ठीक से नहीं बनाया ऊपर दिया, तो आप बोले, उसके बाद बोलेंगे ठीक है मैं खाना ठीक से नहीं बना पाया। आपके जैसा हरकत तो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं करता। इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन, क्या सोच रहे इसके बाद कुछ हो पाएगा? होगा कुछ? तो इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन हर व्यक्ति सोच रहे ना, भाई सच में प्रभु जी ऐसा ही हो रहा है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी। आई एम नॉट एट ऑल पॉइंटिंग आउट एनीवन, दिस इज द लेवल ऑफ माइंड। यूथ है, ये सब तो करेंगे, और कब करेंगे? बुढ़ा होने के बाद करेंगे, सही है ना? यूथ है तो, लेकिन माइंड ऐसा है, माइंड ऐसा है, तो अब भी आपको लग रहा है कुछ हो पाएगा? आप सोचते हो प्रभु जी हम तो सोचे थे आप मोटिवेट करने के लिए आए थे, आप तो पूरा डिमोटिवेट कर दिए, आप तो पूरा एकदम पोल खोल के जा रहे हैं, थोड़ा सा बचाने दो, पूरा सब कुछ एकदम खुल के बता दिए, अभी लग रहा है कुछ हो पाएगा? और देखिए यहाँ का ये जो स्थिति है, इट्स नॉट इन आवर सिचुएशन। इवन इन भगवत गीता अर्जुन इज टेलिंग द सेम थिंग, अर्जुन इज टेलिंग द सेम थिंग इन 6.34। अर्जुन इज टेलिंग, आप लोग दोहराएंगे 6.34, क्या कह रहे हैं? चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्मः निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। अभी क्या कह रहे हैं अर्जुन? देखिए क्या कह रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण, है कृष्ण मेरा मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। 3 चीज बोल रहे, प्रमाति मतलब वेरी ऑब्स्टिनेट, वेरी ऑब्स्टिनेट, वेरी ऑब्स्टिनेट, प्रमाति बलवद बहुत पावरफुल है, ऑब्स्टिनेट मतलब आपके अंदर में कुछ घुस गया, उसके बाद आप सोच रहे इसको निकालने के लिए जा ही नहीं रहे। आप एग्जाम के पेपर दे के आए, पेपर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया, नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर होने के लिए बैठे, लेकिन याद आ रहा है वही चीज। प्रमाति बलवद बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, प्रमाति बलवद दृढ़ बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, ठीक है। प्रमाति बलवद दृढ़ तस्मा निग्रह मन्ये, उनको कंट्रोल करने के लिए मैं जब सोचता हूं मुझे लगता है वायुर एव सुदुष्करम, कंट्रोलिंग द विंड इज इजी रेदर देन कंट्रोलिंग द माइंड। उनको अच्छा नींद आ गया यार। ठीक है तो कह रहे हैं कंट्रोलिंग द माइंड इज डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। और अर्जुन के पास ऐसा अस्त्र था, अगर हरिकेन जैसा अगर कुछ स्थिति आया भी वो कंट्रोल कर लेते थे। लेकिन मेरा प्रश्न है, आपके पास कुछ ऐसा चीज है जो वायु को कंट्रोल कर सकते हैं? यू कैन कंट्रोल द विंड, कर सकते हैं? कोई बुद्धिमान व्यक्ति है इसके अंदर? कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते नहीं, यस कर सकते हैं, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं यार। देखिए यहाँ पे फैन चल रहा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बंद कर दीजिए। देखिए वायु को कंट्रोल करने के लिए स्विच है,
लेकिन whether you have switch for controlling the mind, आपके पास माइंड को कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच है? नहीं है। तो अभी हम जाएंगे, फिर हम लोग देखें हमारा स्थिति, लेकिन अभी हम जाएंगे हाउ वी विल कंट्रोल द माइंड। ये अर्जुन का प्रश्न था, तो कृष्ण ने क्या बोलेंगे हम थोड़े डिस्कस करने के बाद फिर जाएंगे, ठीक है। तो नाउ वी विल डिस्कस, नाउ वी हैव डिस्कस द नेगेटिव पार्ट ऑफ द माइंड, how the mind is troubling us, but now we will discuss that how we can control the mind, ठीक है। तो अभी कितने बच्चे हैं you are interested to learn that to control the mind? वो तो सो गए थे, अभी बोल रहे हैं मुझे कंट्रोल करना भी है। और देखिए ये जो कंट्रोल का बात आता है ना, when we are thinking that we will control something, then you need to practice, you need to practice, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या क्या हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, माइंड इन पॉजिटिव सेंस, यस नेक्स्ट, हाँ यस, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन। अब कितने बच्चे हैं जो मेडिटेशन कुछ ना कुछ करते हैं? तो यहाँ में सत्युग में आने जैसा लग रहा है, सब बच्चे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सब मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट माहौल है, ठीक है। एटलीस्ट सब कुछ बच्चे मेडिटेशन कर रहे हैं। आई विल एलाबोरेटली टेल यू हाउ यू कैन मेडिटेट, ओके, ठीक है। मैं सेशन के बाद बताता हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना है और मेडिटेशन का पावर क्या है, ठीक है। सेशन के बाद बताऊंगा। एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, आई स्टैंड फॉर इंप्रूव द इंटेलिजेंस, इंप्रूव द इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये जो इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप आपके इंटेलिजेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे? यस, थोड़ा बताइए, आप बता रहे थे, यस बोलिए। हाँ, ठीक है, और कुछ? नॉर्मल बुक्स, जैसे आपका सब्जेक्ट जो, ठीक है, और कुछ? ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट के बुक आप बोल रहे हैं, आप जब पढ़ाई करते हैं आप अच्छा स्कोर करते हैं, ये आपको जॉब करने के लिए हेल्प करेगा। 2018 में आईआईटी हैदराबाद के फाइनल ईयर एक स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। सुसाइड करने के बाद उनका जो नोट लिखा था, नोट में लिखा था कि आई वाज इन फाइनल ईयर सो दैट मेनी कॉर्पोरेशन वाज कमिंग टू रिक्रूट, but when I was facing all these corporations, so I was not getting placed, so that's why I am thinking that I am very hopeless, so that's why I think that I don't have to live। क्या ये लगता है ये बुद्धिमान का व्यक्ति है, इनका बुद्धि है? हो सकता है, पढ़ाई बहुत अच्छा किए हैं, आईआईटी में है, देखिए बुद्धिमान वही व्यक्ति है जब लाइफ में अच्छा सिचुएशन आए या खराब सिचुएशन आए उनको हैंडल कर सकता है। वही व्यक्ति है जो अच्छा सिचुएशन आए या खराब सिचुएशन आए उनको हैंडल कर सकता है। ऐसा नहीं कि आईआईटी में हो, ये हो, वो हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत आईएएस भी है, कुछ स्थिति आने के बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को बुद्धिमान तभी माना जाता है अगर वो व्यक्ति मतलब खराब सिचुएशन में हैंडल कर सकता है। मैक्सिमम आप देखेंगे जब आप ये सब प्रोफेशनल सब्जेक्ट में हो, whether you are doing MBA, MCA or BTech, you will see that few students are coming from the cities, maybe they are from Bhubaneswar or something, and you will find that 60 to 70% students are coming from the village, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, जो विलेज से आते हैं तो उनको लगता है थोड़ा इंफीरियर लगता है, वो इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते, अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो थोड़ा इंफीरियर लगता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, आप गांव में पढ़ने के बावजूद भी आप अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी आप वही क्लास में पढ़ रहे हो जो बच्चे डीएवी, डीपीएस, किड इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के बाद आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब है यू आर मोर इंटेलिजेंट, इसका मतलब है you are more intelligent, so that's why you are also sitting in the same class and your satisfaction level will be far more better। आपका जो एक्सपेक्टेशन लेवल है और आपका जो अचीवमेंट का लेवल है बहुत ज्यादा है, और आप जो भी गांव से आए हैं, जो भी है, उनका बेनिफिट्स ये है बहुत लोगों के साथ वो ज्यादा मिले हैं। और आप देखिए इंडस्ट्री में जाने के बाद व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट एनालिसिस दैट व्हाट द सोसाइटी इज एक्सपेक्टिंग नाउ, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट वी विल मेक दैट सो दैट इट विल बी वेरी अपीलिंग टू द सोसाइटी। तो जितना व्यक्ति लोगों के साथ बहुत ज्यादा मिंगल किए हैं वो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं है मैं मतलब जो सिटी से आए हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल कॉलेज से आए हैं, उनको मतलब मैं नेगेटिव ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव होप दे रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिवनेस है,
ठीक है। तो ये जो इंप्रूव इंटेलिजेंस ना, इंटेलिजेंस कहाँ आता है? व्हेन यू विल रीड द स्क्रिप्चर। आपको हमेशा नेगेटिव टाइम में आपको बचाने के लिए बहुत मदद करेगा। इंप्रूव द इंटेलिजेंस, यू रीड द स्क्रिप्चर, ये सब बहुत आपको हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज नो फॉर बैड हैबिट्स। देखिए बैड हैबिट्स आते आते उनका आरंभ हो गया है, क्या चल रहा है हो गया। तो देखिए जब नो फॉर बैड हैबिट्स का बात करते हैं, दो चीज है। एक है कभी कभी होता है कि बैड हैबिट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, कभी कभी ये होता है एक हाइप क्रिएट हो जाता है कि बैड हैबिट्स में जाना है। एमबीए कर रहा है तो सिगरेट नहीं पीता है, मॉडर्निटी, फील द मॉडर्निटी। तो ये जो हाइप क्रिएट करने की वजह से बहुत बच्चे एक्साइटेड होकर ये चीज कर लेते हैं, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है। आप देखेंगे मोस्टली आईटी कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो बाहर में एक स्मोकिंग जोन होता है, स्मोकिंग जोन। एंड नाउडेज यू विल सी ऑल दिस एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री इज कंप्लीटली फोकसिंग ऑन द गर्ल्स। लड़की लोग अगर स्मोकिंग करना स्टार्ट कर दिए तो उनका इंडस्ट्री का रेवेन्यू को रोकने वाला और कोई नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, जब लड़का सिगरेट फूकता है तो लड़की उनको मना करता है, क्या बेकार का चीज कर रहा है। और लड़की जब स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देगी तो लगभग सब लड़का उनको इंप्रेस करने के लिए एटलीस्ट फूकेंगे। तो इंडस्ट्री अभी बाय नोइंग दे आर फोकसिंग दैट इन एवरी एडवर्टाइजमेंट यू विल सी दैट द गर्ल्स आर स्मोकिंग। और ये मैं कह रहा हूं, ये स्मोकिंग करने से या कभी प्रॉब्लम्स में आप मतलब दारू पीने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। दिस ओनली द हाइप क्रिएशन। और ये सब कहां से मिलता है ना, मोस्टली इन द मूवीज। मैं एक मूवी का क्लिप देखा तो क्या है, शादी का माहौल चल रहा है, एक मतलब छोटी बहन का शादी है, तो बड़ी बहन ऐसे चेयर में बैठ के सिगरेट फूकती रहती है। कौन सा गांव में या कौन सा कहां पे आप देखें ऐसे सिगरेट फूकती है यार। ये मूवीज वाले ऐसे चीज दिखाते हमारे दिमाग को खराब करता है ना। तो ऐसे ही हाइप क्रिएशन, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। ये जो मतलब जब जो मुंबई अटैक हुआ था उस टाइम में एक आईपीएस ऑफिसर थे जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे ये सबको पकड़ने के लिए, जितना टेररिस्ट को पकड़ने के लिए। तो उस टाइम में एक इंसिडेंट आया था, कुछ दिन के बाद उनका कुछ पर्सनल लाइफ में इशू था। तो जब पर्सनल लाइफ में इशू था तो वो सोचे कि एक्चुअली मैं बहुत खराब फील हो रहा है, मैं जाता हूँ पार्टी करके आता हूँ, उसके बाद मुझे अच्छा फील होगा। तो पार्टी करने के लिए गए, दारू पिए, उसके बाद इतना डिप्रेस्ड हो गए उनका रिवॉल्वर निकाले और उनको शूट कर दिया। और एक इंसिडेंट अभी एक यूट्यूबर वो बता रहे थे, बहुत काफी सक्सेसफुल है। वो बोल रहे थे वो जब स्टूडेंट थे उनके टाइम में एक लड़का था, काफी टैलेंटेड था, मतलब ये सब एक्टिंग के मामले में बहुत काफी टैलेंटेड था, काफी क्रिएटिविटी उनका पास था। तो उसके बाद उनके स्कूलिंग हो गया, उसके बाद ये आके पढ़ाई किए। कुछ साल के बाद उनका एक दोस्त उनसे मिले, तो दोस्त से मिलने के बाद वो पूछे कि वो जो लड़का अभी क्या कर रहा है, क्योंकि इतना टैलेंटेड था, अभी तो शायद हो सकता है बॉलीवुड या कहाँ पे होंगे। तो बोले कि आपको पता नहीं क्या उनका हालत? बोले क्या हो गया? वो बोले वो अभी जेल में है। तो क्या हुआ था ऐसे somehow or others, वो कॉलेज में जब गए तो कॉलेज में जाने के बाद he was addicted to the bad habits. Somehow he got associated with this kind of people and after that he got addicted to ड्रग्स एडिक्शन होने के बाद हर दिन उनको पैसा का जरूरत पड़ता था और हमेशा उनके पेरेंट्स के साथ बहुत झगड़ा होता था। तो एक बार क्या हुआ था, घर गए थे, तो घर जाने के बाद उनका डिनर होने के बाद वही पैसा को लेके बहुत झगड़ा हुआ। डिनर होने के बाद नेक्स्ट दिन जब घर के मतलब और लोग उठे तो इनका हर व्यक्ति का डेथ हो गया था। इनका घर में डेथ हो गया था। क्यों? कि इनका जो इतना झगड़ा हुआ और इनका दिमाग का रिएक्शन इतना था, तो खाना में जहर मिला दिए थे सबका। एक ही व्यक्ति बच गया था, एक ही व्यक्ति वो कहाँ पे बाहर गया था, तो उस दिन वो डिनर नहीं किया था, तो रात को उनका गला काट के उनको मार दिए थे। पूरा फैमिली का लगभग 7-8 व्यक्ति का मतलब वो मार दिए, क्योंकि ड्रग्स का एडिक्शन, दिस इज द लेवल। सो दैट्स व्हाई, so if you are not in this kind of thing, you don't think that this kind of thing will give you pleasure. It's just a hype creation, nothing else. So that's why कि जिस लोगों ने हो सकता है कुछ बैड हैबिट्स में आ गए हैं, उनके लिए डिफरेंट प्रोसेस है how they will be saved from all these things. But if you are not in that thing, then you should be very much cautious that how you will not be involved in this thing. Okay, next.
D stands for discipline. D stands for discipline. डिसिप्लिन है? हाँ? क्या डिसिप्लिन है? तो डिसिप्लिन देखिए, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हाँ? हाँ? क्या? नॉट लॉन्ग जर्नी, लॉ नहीं, वो डिसिप्लिन का बात नहीं कर रहे, खुद का लाइफ का डिसिप्लिन, मेंटेन साइलेंस। ओके, और कुछ डिसिप्लिन का बात कह रहे हैं, भगवत गीता में कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त आहार विहारस्य, क्या क्या कह रहे हैं? युक्त आहार विहार, ठीक है। युक्त आहार विहारस्य युक्त स्वप्नस्य बोधस्य, क्या है? युक्त आहार, आहार में बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। आज के देखिए टाइम में क्या हो रहा है, बच्चे ज्यादा जंक फूड खा रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाते हैं जिम, कार में जाएंगे जिम, और जिम में जाने के बाद साइकिल चलाएंगे, ये है प्रोसेस। तो इसीलिए देखिए, तो खाने में बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं आई एम नॉट टेलिंग दैट यू शुड नॉट टेक जंक फूड, एटलीस्ट वंस इन ए वीक, दैट इज फाइन, बट ऑलवेज ईटिंग दैट फूड इज नॉट गुड। आहार, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हाट टाइम यू आर स्लीपिंग एंड व्हाट टाइम यू आर वेकिंग अप। हम लोग यूथ सेशन शुरू करने के लिए प्लान किए थे, तो यहाँ पे एक सुंदर सा कॉलेज है, बहुत सुंदर कॉलेज है, उधर का जो रोड है, हम लोग जाते हैं मोस्टली पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। So we are thinking that we will start the session by 11 o'clock. So we just checking that what time students are getting waking up. ठीक है, तो हम लोग पूछने लगे कि आप लोग कितने बजे उठ जाते हैं? तो बोले प्रभु जी हम लोग तो 2 बजे तक उठ जाते हैं। 2 बजे तक उठ जाते, तो कितने बजे सोते हैं? वो बोले हम लोग तो 5 बजे तक सो जाते हैं। 5 बजे सोते हैं और 2 बजे उठ जाते हैं, ये स्थिति है। तो आप लोग कितना बजे सो जाते हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे स्लीप बाय 10 o'clock? 10 o'clock नहीं, ठीक है, 11 o'clock, 12 o'clock, 2 o'clock, 5 o'clock। कितना बच्चे हैं जो सोते नहीं? तो देखिए साइंस से स्टडी। और कितना बजे आप लोग उठ जाते हैं? बाय 6 o'clock। हाउ मेनी यू वेक अप बाय 6? हाउ मेनी बाय 5 o'clock? 5 बजे उठ के क्या करते हैं आप? फिर सो जाते हैं। और ओके, ठीक है, 6 बजे तक कौन कौन उठ जाते हैं? 6 बजे तक, ठीक है। 7 बजे तक, 8 बजे तक, कितना बच्चे उठना नहीं चाहते? ठीक है। और यहाँ पे क्लास कितना बजे होता है? 9:30 बजे, ठीक है। जो दिन क्लास नहीं होता है कितना बजे उठते हैं? 9, 2, 11। क्यों उठ रहे हैं? नेक्स्ट दिन एक बार क्लास, कॉलेज जब स्टार्ट होगा तभी आएंगे। तो ये देखिए मोस्टली क्या होता है ना, कॉलेज के टाइम में ठीक है, आप लोगों को जॉब होने के बाद कभी कभी शिफ्टिंग क्या हो जाता है। मेरा जो करियर था, मेरा शिफ्टिंग था 12 o'clock इट विल स्टार्ट एंड बाय 9 o'clock इट विल स्टॉप। सो दैट्स व्हाई मोस्टली क्या होता है, और बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, सुबह सोने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वहां पे अगर किसी को पूछेंगे व्हाट इज द अर्ली मॉर्निंग, दे विल टेल दैट 9 o'clock इज द अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। तो आप लोग देखिए, माइंड जो है ना, माइंड इज क्रिएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस, एंड यू नो द साइंस इज टेलिंग द बेस्ट स्लीपिंग आवर इज, व्हाट इज द बेस्ट स्लीपिंग आवर? बेस्ट स्लीपिंग आवर, व्हाट इज द बेस्ट स्लीपिंग आवर? 10 to 5, 10 to 5 इज द बेस्ट स्लीपिंग आवर, ठीक है। बेस्ट स्लीपिंग आवर इज 10 to 5। तो इसीलिए देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ में अगर डिसिप्लिन हम लोग सीख नहीं पाए तो एवरीथिंग यू विल गेट, बट ओनली थिंग दैट यू विल लैक योर मेंटल पीस। और जो भी कुछ कर रहे हैं आप देखेंगे, जितने भी आप कोई भी कॉर्पोरेशन जाए, जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, हमेशा दे आर वेरी मच डिसिप्लिन, दे प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, दे आर वेरी मच डिसिप्लिन। Neither maintaining these all things is not easy. They will handle at least 10 to 11 calls, then client call, this, that, and all this means they will handle. How much it is difficult? We are not able to control ourselves. They have to control 100 people. So how it is difficult? So that's why they are very much disciplined. So that's why if you are thinking that you want to be happy as well as you want to grow in the industry, then what do you need to do? You need to be disciplined, ठीक है।
तो यू नीड टू बी डिसिप्लिन। और उसके साथ देखिए बिहार, बिहार का मतलब क्या है, भगवत गीता में कह रहे बिहार। हम लोग बिहार कहाँ कहाँ करते हैं, बिहार का मतलब घूमना, घूमना कहाँ कहाँ करते हैं। आज के टाइम में सबसे ज्यादा घूमना हम मोबाइल में ही करते हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल पे ही घूमना करते हैं। तो जब घूम रहे हैं थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट दीजिए, रुक जाइए। रात 2 बजे तक उधर उधर घूमने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ कहाँ घूमते रहते हैं, उतना घूमने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बचा के रखिए, ठीक है। तो बचा के रखेंगे तो बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, आपका करियर को सक्सेस हो सकता है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि हाउ यू विल डू द मेडिटेशन, ठीक है। कितने बच्चे हैं जो आपको सीखना चाहते हैं मेडिटेशन, एटलीस्ट वी विल स्टार्ट द मेडिटेशन। सब थोड़ा फोटो खींच लो, थोड़ा फोटो खींच लो सबका। कितने बच्चे हैं, ये तो सोच रहे प्रभु जी क्यों इधर आ रहे, मैं तो हाथ खड़ा नहीं करना चाहता, आप क्यों मजबूर कर रहे मुझे। सब चाहते हैं। देखिए आई एम टेलिंग कि दिस इज द वेरी सिंपल प्रोसेस एंड साइंस इज टेलिंग, साइंस क्या कह रहा है, साइंस इज टेलिंग दैट, सो हाउ मेनी सेंसेस वी हैव, 5। कौन कौन बोल रहे हैं 6। तो आप इतना पीछे क्यों बैठे, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे, इतना पीछे क्यों बैठे, कितना 6, वो बोल रही, वो बोल दिया 6 तो मैं बोल दूंगा 6, ठीक है। तो ठीक है, अभी कौन बोल सकता है ये 5 सेंसेस कौन सा है, हु कैन टेल दैट व्हाट इज द 5 सेंसेस। यस प्लीज। आईज नोज, यस, आईज नोज माइंड ईयर, और माउथ नहीं, टंग और एक हो गया, माइंड तो हो गया, स्किन, ठीक है। पहला है स्किन, पहले स्किन से स्टार्ट करते हैं, स्किन, देन नेक्स्ट वन इज टंग, नेक्स्ट वन इज ईयर, आईज, नोज, देन mind. Mind is the sixth sense. We used to speak na, my sixth sense is telling. So that's why in Bhagavad Gita Krishna is telling mana sashtendriyani, mana is the sixth indriya, ठीक है। So science is telling out of the 6 senses, if the 3 senses are involved in a purified activity, then gradually this mind will be controlled, ठीक है। आउट ऑफ द 6 सेंसेस इफ द 3 सेंसेस आर इन्वॉल्वड इन ए प्यूरिफाइड एक्टिविटी देन ग्रेजुअली दिस माइंड विल बी कंट्रोल, ठीक है। तो अभी हम दिखाएंगे कि कैसे जो मेडिटेशन है, मंत्रा मेडिटेशन है, हाउ मोर देन 3 सेंसेस आर इन्वॉल्वड, ठीक है। मेरा चैंटिंग बैग कहाँ है, ठीक है। सो दिस इज द बीट, ओके, आई विल शो यू। सो हाउ यूजुअली वी चैंट। आप लोग सोचते होंगे प्रभु जी क्या यार, ये एमबीए के क्लास में आके ये सब माली झोली दिखा रहे, क्या चल रहा है। तो यही है भाई, यही है, बाहर सब दिखावा बहुत ज्यादा होता है। आज के टाइम में लोग इतना डिप्रेस्ड इसीलिए है क्योंकि दिखावा बहुत ज्यादा है, रियलिटी से बहुत कम आता है नजर में, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ। So in the chanting process, so how usually more than 3 senses are involved. So this is my bid. So when you are chanting, so आप लोग जब chanting कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो so when I am going to chant, so you see I am just holding this beat, okay. So I am just holding this beat. So I am just holding this beat. So when I am holding, you see the skin is involved, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, we are chanting one mantra. So how many of you know that what mantra we chant? Yes. Can you tell? No, complete mantra. Yes. Wow. सच में आप लोग सतयुग में। तो ठीक है, क्या मंत्र, ठीक है। सो इन द एवरी बीट यू विल चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यू सी माय टंग इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अभी स्किन इन्वॉल्व हो गया था, अभी टंग इन्वॉल्व है। और जब इतने जोर हमको बोलना है, यूजुअली व्हाट हैपेंस ना, सम मंत्र इज देयर, दे स्पीक दैट यू विल साइलेंटली यू विल चैंट, बट दिस मंत्र एटलीस्ट दिस मच साउंड यू विल प्रोड्यूस सो दैट यू कैन एटलीस्ट हियर, ठीक है। तो अभी क्या, कान भी अभी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है।
जब कान भी इन्वॉल्व हो गया, अभी आंखें में अभी क्या करेंगे, कृष्ण का कुछ पास टाइम हो सकता है या कृष्ण का छवि हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ माइंड यूजुअली व्हेन यू विल स्टार्ट, यूजुअली इन द स्टार्टिंग टाइम माइंड विल गो हियर एंड देयर, माइंड इधर उधर जाएगा, लेकिन माइंड को हम लोग खींच के लाएंगे, बस तुम ये मंत्र को ही सुनो। This is the process. So that's why this process is called, this is the most effective process to control the mind because 5 senses are involved in this process. ठीक है, तो हम लोग at least 8 time we will chant now. Are you ready? ठीक है, अभी देखेंगे 4 बजे BIITM के स्टूडेंट के अभी एनर्जी लेवल कितना है, ठीक है। कौन सा मंत्र हम चैंटिंग करेंगे? ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा, आप मेरे साथ ही दोहराए, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया, ठीक है। तो आई विल स्टॉप द सेशन हियर।